session will be Yeah, yeah, yeah. we'll be discussing on machinery of government. It will be mainly on an overview basis, based on your experience already in the department. तो मेरे जो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? Yeah, sir. Though use Hindi, English will be better. ठीक है, ठीक सर, ओके. So I think my introduction has been given, so I am skipping the slide. So for the next around 50 to 55 minutes, what we will be doing, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे सेशन के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि हमने किस एरिया के बारे में बात करेंगे, कहाँ तक बात करेंगे. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes. Yes, चलिए. The slide is visible. Yes, yes. Okay, this is the framework we have kept for today's discussion. We will know what exactly do we mean by the machinery of government, then the structure जो भी है, जो department functions वगैरह क्या रहता है, what are the structure of the ministry or department, and where your organization sets in. आपके जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर which is the organization, sir? Can I just ask you? निम सर है ना, you said? So many institutes are there, sir. नहीं Like नहीं, आपका इंस्टीट्यूट, दिस प्रेजेंट वन, इट्स इन बारामती है ना? Baramati National Institute of Aquatic Stress Management, NISM, NIASM. Aquatic Stress Management, National Institute of Aquatic Stress Management. ओके ओके, ठीक है, ठीक है. So I'll be able to tell them about it. Okay, so we move from here like this. First of all, we started. What do we mean by machinery of government? सर जवाब दीजिए. आप इसे क्या समझते हैं? मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट बोलने से क्या है इस वर्ड का? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? Anyone can tell? आपके पास जो भी जानकारी है उसी हिसाब से आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं है. गलत हो तो भी ठीक ठाक है, आप सही बताएंगे, वो सुधार लेंगे अगर कुछ जरूरत पड़े तो. हाँ जी. So the way the government functions, sir. हाँ जी. The way the government functions. Okay, that is good. That is good. Mr. Sadashivam from Coimbatore, what's the institute? Sugarcane Breeding Institute, sir. अच्छा, Sugarcane Breeding Institute, SBI. I thought that SBI, when I found the short form, suddenly it clicked my State Bank of India. So because I take sessions for them also, I thought it's a Sugarcane Breeding Institute. Yes, sir. ये Yes. कोयम्बतूर में where it is located? Sir, Veerakerlam, sir. Nearby माने Araspuram. अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए. सो दैट मीन्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी फंक्शनिंग, उसके लिए विच आर ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दे यूज इट और मेथोडोलॉजी दे यूज इट, उसी के बारे में बताएंगे. मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट मीन्स दैट वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ इट गोज. विच आर ऑल द पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट? We know that we function as a democratic institution, so it is elected body is there. So what are the different pillars of government? Okay, I'll proceed like this. First is legislature, where elected representatives will be assembling together and deciding about the policy matters and how to govern the country, and what are the important facets to be introduced in the governance. ठीक है. उसके बाद रहेगा आपका जुडिशरी रहेगा. जो लेजिस्लेशन ने जो लेजिस्लेशन लगाए थे उसमें जुडिशियल माने the legal terms whether it fits into the policies of the welfare state or not, वो देखेंगे जुडिशियल. उसके बाद रहेगा एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव का जो है जिम्मेदारी रहता है जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट किए थे जो जुडिशियली एप्लीकेबल है विद इन द कंट्री, उसको एग्जीक्यूट करने का दायित्व उनके पास रहता है. सो मूविंग फ्रॉम हियर how it functions like this. What is the structure of the government of India? There is an executive head. Who is the executive head of government of India? It's the president of India. Okay. मैं जब सवाल कर रहा हूं थोड़ा सा जवाब देने से वी कैन कीप इट इंटरेक्टिव, अदरवाइज मोनोटोनस हो जाता है. ओके. तो executive head, the executive head president of India functions generally under the advice
of Council of Council of Ministers. And who heads the Council of Ministers? बताइए सर, anyone? Who heads the Council of Ministers? Prime Minister. Prime It's Minister, headed sir. by the Prime Minister in the country, and when it goes to a state, it is headed by the Chief Minister. Okay. In the state level पे जब देखा जाता है, आपका जो है, the executive head will be the governor of the state. Government of India के लिए, for the country, it is the President of India. Then Council of Ministers consists of Prime Minister and Cabinet Ministers, and also sometimes ministers with independent charge. अगर वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने के लिए उनके लिए ऑथराइजेशन है, दे आर ऑथेंटिकेटेड, दे आल्सो मे इंक्लूड इन द कैबिनेट ग्रुप. ठीक है. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स, आज का डेट में हमारे जो कंट्री में कितनी कैबिनेट मिनिस्टर्स है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? कोई बता पाएंगे? हाउ मेनी आर देयर? देयर विल बी सम परमानेंट विल बी देयर. परमानेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स विल बी देयर. परमानेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स विल बी देयर. कौन कौन होते हैं? Finance Minister, sir. या फाइनेंस, Home Minister, होम, Railways, sir. ओके, हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं. ओके, देन Defense Defense. Minister, डिफेंस, External एक्सटर्नल affairs, अफेयर्स. ओके. सो देन इंडस्ट्री है, Commerce, या Ministry कॉमर्स, of इंडस्ट्री एंड Commerce. कॉमर्स रहते हैं. सो देर आर मिनिमम, इट्स मिनिमम नहीं, देर आर परमानेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स विल बी देयर who takes care about the security of the country. Internal security will be by the home minister, external security by external affairs, then finance, then defense, and then industries, agriculture, commerce, and all those things will also be there. Okay. लेकिन इनका इसका जो लिस्ट, who will be the cabinet minister, who decides and who publishes the list of cabinet ministers? On the advice of the prime minister, president approves inclusion of the ministers as cabinet ministers and or ministers of state with independent charge, having a cabinet rank at some point of time for certain purpose, not generally. Okay. And the list is generally published by the cabinet secretariat. चलिए, let's say when we moving from here, we come into the government structure of the government of India. It goes like this. There will be ministry or ministries will be there, followed by normally either headed by a cabinet minister or others. Minister of state with independent charge होते हैं. Then in addition to that, there will be minister of state also, which will be in the ministry. उसके बाद रहेंगे, it comes to department. अभी आप मुझे बताइए, who normally heads the department under government of India? Who heads the department in government of India? Secretary. It is the secretary to the government of India. The senior most civil servant in the ministry, in the executive side, will head the department under a ministry. Okay. From there, then we have got some others also. That the department is generally divided into wings, divisions, and sections, where section is the starting unit or the main processing first interface between the public and the government. That is a unit. Then divisions will be there, then wings will be there. There will be appropriate authorities will be there who will be heading these wings, divisions. Cabinet Secretary, as we know, he is a senior most civil servant under Government of India, and he heads the Cabinet Secretariat, which normally is under the control of the Prime Minister. Normally under the control of the Prime Minister. And they publish 2 documents under the authority of President of India. President of India, he publishes that one. He issues that one. President of India authorizes and issues 2 documents. One is allocation of business rules, and another one is that there will be transaction of business rules. Okay. Have you heard about it? आप जो जितने भी लोग बैठे हैं ये सेशंस पे, आप लोगों ने ये इसके बारे में सुना है क्या? Allocation of business rules और transaction of business rules. हाँ या ना में जवाब दीजिए, कोई बात नहीं है.
You can say yes or no. Yes, sir. Where did you hear it? In your foundation training? No, sir. In news, sir. News. न्यूज? अच्छा, न्यूज में हम सुनकर आपको क्या पता चला? what exactly do we mean by this allocation of business rules, and what exactly is the transaction of business rules? Don't think that I'm putting more questions to you because you are responding, so I thought that I should keep the chain in motion. हाँ जी. Sir, in Lok Sabha, for discussion like that, sir. अच्छा अच्छा, ओके हाँ. ओके, ठीक है. So generally the functions of government for governance purpose is carried out based on the prescribed procedure. The procedure has been indicated very clearly in the allocation of business rules. That's a document published right from 1961 onwards. It is published under the authority of the President of India based on the constitutional provisions. And then one more is there, one more document is there, which is called the transaction of business rules. We'll discuss in detail about it after some time. Okay. So for the time being, we'll just keep it like this. Then we'll move from here further. Basically, the TOBR, what we say, it will indicate the how the business has to be conducted. What is the procedure? It lays down the procedure to conduct the business of the government by the allocated ministry or the department, या जो भी जो आपके जो बिना मिनिस्ट्री के भी डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो उसका तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहता है, तो इट्स नॉट अ मिनिस्ट्री बेसिकली. दो फॉर पार्लियामेंट पर्पस इट्स हेडेड बाय द, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. So moving from here, we will try to understand the structure of a department. आप लोग अभी all of you have been working in the field units only so far? कितनी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं सर? इसके साथ सर कितनी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? 29 sir. अच्छा, 29 स्प्रेड ओवर पैन इंडिया. Yes sir. अच्छा, ठीक है. तो इट इज ए काइंड ऑफ ए प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग और ए इंडक्शन ट्रेनिंग? Yes, sir. Promotion training, sir. Pre-promotion training. Okay. So that means you will be required, you will require to remember the what we discussed. हमने जो भी बात कर रहे हैं, जो भी सवाल जवाब दे रहे हैं, सवाल का जो आप जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब जो दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा याद रखना जरूरी पड़ता है. ठीक है. तो डिपार्टमेंट का मेनली स्ट्रक्चर कैसे रहता है उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं. ये आपको जो मिलेगा जनरली, कितने लोगों ने मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर बुक देखा है? CSMOP, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, कभी देखा है आप लोगों ने? जरूरत नहीं पड़ी होगी ना यूनिट में, कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो द स्ट्रक्चर गोस लाइक दिस. इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी. देयर विल बी विंग्स, डिविजन्स, ब्रांचेस एंड सेक्शंस. A joint secretary will be there. Normally, he is declared, he or she, whomsoever joint secretary is generally declared as the head of department for administrative purposes in the ministry, and there will be many wings or divisions under the one joint secretary. Joint secretary generally supported by a deputy secretary to Government of India, and in between there may be one more officer called a director, who is of the junior administrative selection grade level रहते हैं. They belong to not either central secretariat service or from any of the group 1, group A allied services of Government of India. ये deputation में भी आते हैं and they go back after a certain tenure. And deputy secretaries are the responsible persons who generally hold the divisions. They are the divisional officer, we can say in that way. आपके उधर कैसे हैं? आपके जो ICAR का जो स्ट्रक्चर में है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो इंस्टीट्यूट है कोयम्बतूर में, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, हु इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट? डायरेक्टर? Director, sir. Director. Director is supported by whom? Next one, number 2. Head of office, head of finance. अच्छा, head of office. See, we are going in the administrative way. So the director is the head of department. So Yes, sir. along with him to support to look after the daily administrative matters, another officer is declared as the head of office under Schedule 5 of the Delegation of Financial Powers. Okay. So this generally this
head of office should be in the level of a deputy secretary to government of India or equivalent. ठीक है, तो जनरली ये क्या रहते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, जेएजी ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं. बट नाउ डेज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रक्चर ऑफ द cadres इन ऑर्गेनाइज सर्विसेज, इट मे बी सीनियर टाइम स्केल सिलेक्शन ग्रेड. सीनियर टाइम स्केल सिलेक्शन ग्रेड बोलते हैं. ठीक है, चलिए. सो डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स इक्विवेलेंट ऑफिसर्स विल बी डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ ऑफिस. उनका जो मेन काम है, रोज का जो कामकाज देखते हैं, प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए उनके दायित्व दिया जाता है. द हेड ऑफ ऑफिस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑन डेली रूटीन बेसिस. The under secretary in the secretariat function, secretariat structure पे in a department, the deputy secretary is supported in all matters related to the functioning of the particular department or wing or even a division by a under secretary, and certain other team members will be there. So the under secretary is generally declared as the branch officer, and he will also be in the secretariat system of functioning of government of India. The under secretary also happens to be the appointing authority for erstwhile Group D staff members, and now they have become MTS, Group C MTS. So they continue to be under the under secretary should be being a branch officer, वो appointing authority भी होते हैं. ठीक है, लेकिन बाकी सभी के लिए जो ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट वगैरह रहता है, जनरली डिप्टी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर विल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. एंड इसमें भी जो क्लासिफिकेशन में क्लास 2 पोस्ट है, क्लास 3 पोस्ट है. क्लास 2 के लिए, नॉन गैजेटेड के लिए नॉर्मली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल रहते हैं नॉर्मली, और जेएसजी ऑफिसर्स रहते हैं. Then comes the section officer, the very important person in the structure, because he is called the repository of all information, records and management of records. Complete responsibility उनके पास रहता है. Whatever information relating to the appropriate functioning of the department is required, section officer is the responsible person who has to, जिनका दायित्व रहता है पूरा देने के लिए. आपके उधर कैसे स्ट्रक्चर है सर, डॉक्टर दास? हाउ इज द स्ट्रक्चर इन योर इंस्टीट्यूट? सर दास सर नहीं है सर अभी. अच्छा, एनीबडी एल्स फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट? दास सर नहीं है तो एनीबडी एल्स कैन आंसर. आपके इंस्टीट्यूट में स्ट्रक्चर कैसे हैं? जैसे मिस्टर सदाशिवम Sir, in most कोयम्बटूर of से the जो बता IPR रहे थे, institutes, below the director, there will be administrative officer हाँ, and finance accounts officer. ओके. हाँ. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लुक्स आफ्टर So एडमिन फंक्शंस एंड head फाइनेंस of लुक्स office will be the administrative officer, senior administrative officer, ओके, एग्रीड. and the head of finance will be accounts officer. ओके, एग्रीड. उसके बाद And below that, there will be assistant administrative officers ओके, and assistants हाँ, and UDCs, या LDC, प्रोसेस लेवल पीपल, प्रोसेस लेवल सपोर्ट supporting स्टाफ. staffs. हाँ. ओके. तो बेसिकली जैसे देखिए, अभी हमने जो डिप्टी सेक्रेटरी बोले थे सेक्रेटरी सिस्टम पे, इन योर दिस वन इट मे बी इक्वल टू योर से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इफ आई कैन से, बिकॉज अंडर सेक्रेटरी इज नॉर्मली इन द सेक्रेटरी लेवल फंक्शन में ग्रुप ए क्लास 1 एंट्री लेवल का होता है. इन योर ऑर्गेनाइजेशन दी ऑटोनोमस बॉडीज में जनरली आपके जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज ए क्लास 2 पोस्ट और क्लास 1? मिस्टर राहुल, It's a group B post, I think. ग्रुप बी पोस्ट. ओके, सो हाँ. क्लास 2 पोस्ट है. हाँ. देन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज क्लास 1 पोस्ट. Group A post, I think. ग्रुप ए पोस्ट है, वेयर दी now the after the 7th CPC it is in the pay level 10 or 11? I'm not sure. I'm not sure, sir. Okay, this administrative officer he is in the pay level 9 or 10 10? sir. 9. 10 sir, pay 8. level 10. पे लेवल 10. देन आपका जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है पे लेवल 11 है. ठीक है, 11 पे रहते हैं. देन अबव दैट इट विल बी दी हेड ऑफ ऑफिस विल बी देयर. देन देयर यू गॉट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. ओके, चलिए. So for example, if we take the example of a Ministry of Agriculture, then how the structure will be? Let us just go through that one. Minister will be there, and आज का डेट में who is the minister? If we can slightly remember about it, Sir, who is the Shivraj minister Singh of Chauhan, sir. Huh? Shivraj Singh Chauhan, sir. Yes, Shivraj Singh Chauhan, former
Chief Minister of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Okay. And is he supported by any Minister of State also? Yes. Yes, sir. Yes, yes. There is a Minister of State with there because कभी कभी ऐसा है Ministry of Agriculture is a very large organization. So always the cabinet minister will not be able to devote much time for looking after monitoring the functions in the जितना भी जो आपके यूनिट्स है उसी को, तो इसलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी ऐड कर देते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए कुछ चार्जेस दिया जाता है, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के पास रहता है. देन देयर मे बी मोर देन वन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आल्सो पॉसिबल, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, to support the main cabinet minister, minister of state will also be there. Then under the minister of state, it may be independent departments will be there or multiple departments will be there under their control, which will be headed by a secretary. ठीक है. Or sometimes some of the departments may be headed by the additional secretary level officer. Then comes this then there are two types of offices are there. One is an attached office and another one is a सबऑर्डिनेट ऑफिस. आप में से जो बैठे हैं कोई बता पाएंगे इसका डिफरेंस क्या है? अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी सर, अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस का मीनिंग क्या है या उसका डिफरेंस क्या है? इसका सरकार में जो स्ट्रक्चर में रखने का जरूरत या दैट उसके बारे में मैं बता दूं, लेकिन आप पहले उसका मीनिंग बताइए, क्या आप समझते हैं? In subordinate offices, some functions will be delegated independently, sir. Attached office directly will take care of the ministry. ओके ठीक है. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? और कोई कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? Any others would like to add what Mr. Sathashivam, है ना? I think the answer was given by Mr. Sathashivam. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Anybody else? अगर कोई उनके साथ और कुछ जोड़ना चाहते हैं इंफॉर्मेशन? चलिए हम बताते हैं. जनरली जो है भारत सरकार में जब भी जहां जो मिनिस्ट्रीज रहता है, वेयर एवर मिनिस्ट्रीज आर देयर, द मेन फंक्शंस आर डेलिगेटेड इन टू डिफरेंट साइड्स. One is the implementing side totally and another is the policy framing side. तो पॉलिसी फ्रेमिंग साइड जनरली उसको देखा जाता है, उसको जो है कार्रवाई करते हैं अटैच्ड ऑफिस. अभी आपके जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये किस विभाग के अंदर? कृषि मंत्रालय के अंदर आ रहा है. अंडर विच डिपार्टमेंट द आईसीआर इज फंक्शनिंग? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. Department of Agriculture and Research Education. DARE में ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन. You will be surprised to know that when I joined service in Government of India, there are only two departments under Ministry of Agriculture: Department of Agriculture and Department of Farmers Welfare. Okay, so now it has become around 6 or 7 departments are there under Ministry of Agriculture. DARE is one of the major one. Department of Agriculture and Research and Education, है ना, if I remember right? Yes. Research and Education, ठीक है. And ICR comes under the DARE, Department of DARE. 1 minute. Hello. हाँ. Okay. Madam, I'm in online session. I'll talk to you after 5:30. ओके ठीक. सॉरी, ये आते रहते हैं कभी कभी. ठीक है. तो अटैच्ड ऑफिस का प्राइमरली दे आर द रिपोजिटरी ऑफ मेन इंफॉर्मेशन एंड दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पॉलिसी मैटर्स, and also they will say how the policy implement, who will be the implementing side, implementing agencies. ठीक है. Attached officers can sometimes represent the department in a discussion if need be in Lok Sabha, whereas subordinate officers do not have that power.
तो सबऑर्डिनेट ऑफिस जनरली इट्स ऑल फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस। आईसीआर का हेडक्वार्टर्स इट्स इन कृषि भवन, लेकिन आईसीआर का यूनिट पूरे तो बाहर है, इन फील्ड है। तो जनरली इवन आईसीआर मिनिस्ट्री में बैठने के बावजूद भी उनको कभी कभी कहा जाता है कि आईसीआर इज एन सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ अटैच्ड ऑफिस ऑफ डेयर। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप आम आदमी के भाषा में समझना है तो सबऑर्डिनेट ऑफिस आर दोस ऑर्गेनाइजेशंस या दोस यूनिट्स जो भारत सरकार का जो आदेशों को या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके उसमें जो क्या कमियां उसको कैसे सुधारने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अटैच्ड ऑफिस को। अटैच्ड ऑफिस आर दोस वंस मिनिस्ट्री का डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रक्शन से आदेश है उसको जो लागू करने के लिए तरीका बताते हुए करते हैं, उसके साथ साथ जो सुधारने के लिए भी इंफॉर्मेशन फील्ड ऑफिस से लेते हैं। ठीक है। कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. ठीक है। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, देयर में बी ए पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी एन अटैच्ड ऑफिस एज वेल एज सबऑर्डिनेट ऑफिस, दोनों एक मिनिस्ट्री पे बैठा रहता है ड्यू टू सर्टन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। बट अटैच्ड ऑफिसर्स विल नॉट बी इन द फील्ड, इट विल नॉट बी इन द फील्ड, इट मे बी आउट ऑफ दिल्ली बट इट मे नॉट बी इन द फील्ड। ठीक है। चलिए, देन यू गॉट द ऑटोनोमस बॉडीज। सो जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वेयर डस आईसीएआर यूनिट्स स्टैंड? Does it be called the attached office or subordinate office or autonomous body? हाँ जी, एनी वन कैन गिव एन आंसर, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। आपके जो आईसीआर का जो फील्ड यूनिट्स है या आईसीआर जो है, ये किसके अंदर आता है? इसका स्टेटस क्या है? इट्स इज इट एन अटैच्ड ऑफिस और ए सबऑर्डिनेट ऑफिस और एन ऑटोनोमस बॉडी? Autonomous body, sir. ऑटोनोमस बॉडी। Yes, sir. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन ऑटोनोमस बॉडी? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी? जनरली जहां सिर्फ फ्री हैंड रहना है रिसर्च रिलेटेड वर्क कैरी आउट करने के लिए या साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क कैरी आउट करने के लिए, एंड ऑटोनॉमी इज रिक्वायर्ड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न, उसी को ऑर्गेनाइजेशन को बना देते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज। वेयर द जनरल बॉडी आपके उधर कैसे हैं? आईसीआर में क्या जनरल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? जनरल काउंसिल या जनरल बॉडी या समथिंग विल बी देयर, they are totally responsible for the total functioning of the units under the ICR which is located in Delhi. Okay. So autonomous body, they report to attached office, and in turn attached office place the documents of the autonomous bodies in a consolidated matter through an annual report to the parliament through the minister. ऑटोनोमस बॉडी सर जनरली क्या है आपका, जो जहां कमर्शियल एक्टिविटीज भी इंक्लूड करना है उसके लिए, बिकॉज सो फार एज आई रिमेंबर जो आईसीआर में जो भी रिसर्च होता है इसको कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखते हैं क्या? इज द रिसर्च प्रोडक्ट्स मेड अवेलेबल ऑन कमर्शियल बेसिस टू आउटसाइड टू द जनरल पब्लिक? नो आइडिया। हाँ, License are issued, sir, to लाइसेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन ब्रीडिंग है, वैरायटी ऑफ शुगर केन इज देयर, है ना। जनरली ये क्या कहा जाता है? अच्छा मिस्टर राहुल, यू आर फ्रॉम विच दिस वन IISR, व्हाट स्टैंड्स फॉर? Indian Institute of Spices Research, sir. अच्छा, स्पाइसेस रिसर्च, इट इज इन कासरगोड Kozhikode, ना? Calicut. अच्छा, Calicut, it's based in Calicut, okay. Yeah. And Mr. Venuth, he is in CRIDA. What does it stand for, CRIDA? CRIDA? Central Research Institute for Dynamics. Pardon? Central Research Institute for Dynamics. अच्छा, Central Research Institute for? Dynamics. अच्छा, I am not able to hear because there is voice break is there. ठीक है, that's good. So these are all independent and specialized agencies, and they have to function in a totally with a lot of autonomy. That is why they are created under an autonomous body organization. Okay, moving from here, ICR is there. Okay. So how the business of the government is being carried out? That is the question. Say for example, the previous slide we have seen
there are department, there are attached office, there are subordinate office and autonomous bodies. So what shall be the main function of Ministry of Agriculture? कृषि मंत्रालय का मुख्य काम क्या रहता है? To ensure food for all, हाँ, हाँ जी, यस, to ensure food for all. एग्रीड. उसके अलावा वो कैसे, हाउ वी विल अचीव दैट वन, फूड फॉर ऑल वन प्रिंसिपल? How the department will be able to ensure that food for all, the policy of the government of India will be achieved? By engaging in research activities, increasing the production, increasing the bettering the quality of the agriculture products. At the same time, to take care that the farmers or the agriculturists, mainly farmers who are solely dependent on agricultural income, are not put to serious loss. तो मार्केट फैसिलिटी करना है उनके लिए, मार्केटिंग फैसिलिटीज शुड बी देयर. तो टू रीच द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फील्ड टू द मेन मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट शुड बी गिवन, है ना, so that the citizen countries, जो citizen, they get enough food for themselves as well as whatever is excess हो रहा है उसको export भी कर सकते हैं हम. Through that we can earn some revenue. So the agriculture ministry, just it is not that food for all, that is the main thing, but उसके साथ साथ quality food, health and all those things will also come under picture. ठीक है. So what business it will carry out, Ministry of Agriculture will carry out, that will be indicated in this document, which is called allocation of business rules. Whenever a new ministry takes over Government of India, the President, on the advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister, will decide which ministry will look after which function for better governance. तो allocation of business rule जब हम देखते हैं, when we look into that one, it is issued by President of India. आप जब देखने जाते हैं तो 1960 से 60 से शुरुआत किए हैं, and it goes on in every time the new ministry takes over, it will be revised, the existing one will be revised and new one will be published. It's published by the Cabinet Secretariat and it contains two parts, first schedule and second schedule. First schedule talks about the list of ministries, departments, secretariat and officers which will be functioning for implementing the governance principles and policies of the government. And the second schedule will talk about the subjects which will be taken care, or distribution of subjects to the various ministries and departments. Here, the second schedule lists out each department under a ministry, what it will deal with. For example, this farmers welfare, policy on farmers welfare, can it be looked after by Ministry of Industry or Ministry of Commerce? Ministry of Commerce, if I have to say. No. No, because it is directly related to the agricultural production. So it will be under the Ministry of Agriculture. But will it be under DARE? No, it will not be under DARE. It will be another department. Department of what is it? Farmers welfare, and there's something else is there. Farmers welfare and cooperation or something is there, उसका जो है उसके अंदर आता है वो. ठीक है. सो ये जो डिटेल है वो आपका allocation of business rule में शेड्यूल 2 में लिखा रहता है. तो always remember that allocation of business rules contains two schedule. Schedule 1, list of ministries, departments and offices under Government of India, and second schedule will indicate clearly the subjects which has to be dealt by the ministry, the particular ministry, and who will deal what. That listing will be there under schedule 2. Okay. Then schedule 2 mein there are 5, if I remember it, part 1, 2, 3, 4, I think it is there. Part 1, part 2. There are different types of subjects are there, because some concurrent subjects are also there. Na? For example, forest produce, minor forest produce, MFP, जो ट्राइबल्स जो उनके लिए दिया जाता है, उनका वेलफेयर में दिया जाता है.
दो दैट में कम अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसका पॉलिसी रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, बट द फॉरेस्ट इज कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, सो इट विल बी कंकरेंट लिस्ट पे आता है उसका। ठीक है। देन अभी जो है दैट पीडीएस किसके अंदर आता है ये बताइए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स। Though the agriculture product is owned by the Ministry of Agriculture, but it will PDS, public distribution system, will be under the Ministry of Consumer Affairs. Consumer Affairs, Food Distribution and Consumer Affairs, उसके अंदर जाता है। ठीक। Then AOBR में part we have seen in the Schedule 2 में, for example Schedule 2 में there will be 5 part will be there, part 1, part 2, then part 3 will talk about the subjects which are complementing for union territories as well as for the states. And part 4 will be general and consequential subjects which is handled by the ministry. For example, are you able to read what I have just shown? This CZARI, there is an institution. CZ, Central Zone Audit Research Institute. That also comes under ICAR. Can anyone reply, respond? कोई भी बोल जवाब देंगे? Central Zone Audit Research Institute. Yes, sir. Coming under ये ICR. जोधपुर बेस्ड है। ICR only, sir. It comes under ICAR. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. It comes under ICAR. The beautiful thing is that the Central Zone Audit Research Institute does not deal with agriculture at all, nor with any of the agriculture product. इनका फंक्शन के बारे में किसी के पास कुछ जानकारी है? काजरी, वी कॉल इट एज काजरी, CZARI, क्योंकि उनका जो फंक्शन है CZARI का फंक्शन है, इट फॉल्स अंडर दिस पार्ट 4 जनरल एंड कॉन्सिक्वेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आता है। इस पे क्या है, एनीबडी फ्रॉम राजस्थान साइड अटेंडिंग द क्लास नो? Anybody from Rajasthan side attending the class? चलिए, okay, no problem. In the Jodhpur and other place, Jodhpur, Jaisalmer, वो बेल्ट में, and Pokhran up to Barmer, Barmer and up to Bikaner, that बेल्ट में, there is a shifting sand हुआ करता था। उसके वजह से it's not suitable for any kind of cultivation or agriculture. So to arrest that one, the government of India much earlier, that's way back in 1980, they entered into an agreement with Israel to bring that particular kind of a technology where the spider web grass that used to be planted in the desert area, so that it starts its roots stick to the place and it will reduce the shifting sand due to storm and due to wind, heavy wind. ठीक है, and उसके बाद उसमें it becomes the land becomes slightly better for agriculture purpose. Can anyone say which is the main crop grown in the desert area of India? चाहे वो बार्मर हो या बीकानेर हो या पोखरन हो या Mustard. नॉर्दर्न जोधपुर, हाँ जी, Mustard. Mustard requires water. Here it's arid zone means it's a semi, that water content will be very less. आप लोग जीरा यूज करते हैं ना, जीरा, कुमिन्स, जीरा यस सर। कुमिन्स बोलते हैं, CUMMINS, कुमिन्स बोलते हैं इंग्लिश में। जीरा जो है इसका खेती ज्यादा होता है, इस एरिया पे होता है, स्पेशली आपका जो है दैट बीकानेर से जैसलमेर आते हैं वो बेल्ट में होता है, देन जैसलमेर से बार्मर साइड में होता है, एंड जोधपुर में भी होता है इसका। देन सम मिलेट्स वेयर विच आर ऑल वाटर रेसिस्टेंट एंड लेस वाटर में पैदा हो जाता है, पैदाइश होती है। ठीक है, सो दिस इज नॉट बेसिकली द वाटर बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट सेमी एरिड एरिया का है। देन अभी
around 8 years back when the COVID was there, India was importing two types of fruits. Two types of fruits. Now, India is one of the largest exporter of these two types of fruits. Have you heard about dragon fruit? Yes, sir. ड्रैगन फ्रूट इट इज अ सेमी एरिड का है. इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट एरिया में मैक्सिमम उसको प्रोड्यूस होता है. तो सिमिलरली इंडिया में शुरू हो गया मेनी ऑफ द सेमी एरिड एरिया. सेमी एरिड मीन्स वेयर ह्यूमिडिटी विल बी वेरी लेस एंड रेनफॉल विल ऑल्सो बी वेरी स्कैंडी. तो नीचे जो जमीन पे वाटर कंटेंट विल बी वेरी वेरी लेस और इट इज टू डीप इनसाइड एंड टॉप सॉइल विल नॉट बी फर्टाइल वन. इसको आरिड जोन बोलते हैं, आरिड एंड सेमी आरिड. ठीक है. जोधपुर एरिया ऑफ राजस्थान इज बेसिकली सेमी आरिड, बट व्हेन यू गो इंटीरियर जैसलमेर इट्स एन आरिड एरिया. ड्राई क्लाइमेट रहता है, ह्यूमिडिटी विल बी वेरी लेस. तो नाउ इन दीज प्लेसेस, मेनी ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया नाउ इट्स बीइंग एनकरेज ड्रैगन फ्रूट एंड किवी. किवी बोलकर दूसरा एक फ्रूट है. So these two are being produced and it is becoming economical resilience for the farmers. ठीक है. So this is generally taken under this one international cooperation के थ्रू करते हैं. So other items we can say horticulture. The general and consequential part 4 में जो items रहता है, bioaesthetic planning. What do you mean by this? Bioaesthetic planning. लैंडस्केपिंग वगैरह होता है ना कंट्री साइड में, अर्बन साइड ऑल्सो, अर्बन गार्डन्स, अर्बन ग्रीनरी, उसी को बोलते हैं. देन दिस कॉल्ड द ग्रोम ऑफ फूड, GMF. लैंड रिक्लेमेशन, आरिड जोन से भी सेमी आरिड कर दिया था. देन इट हैज बिकम फर्टाइल एरिया. नाउ बिकॉज आई यूज्ड टू विजिट दीज प्लेसेस इन 80s व्हेन वी आर देयर, दिस काजरी के थ्रू कर रहे थे. And now many of the parts of Rajasthan, they grow many other items other than this jeera and millets. There are seasonal crops are also coming up now. Then part 5 talks about, or part 5 indicate about the damaged crops वगैरह हुआ था through natural process or other thing, how the relief measures have been provided. So this talks about, this brings us to a close on the allocation of business rules. And each ministry का, now each functions of the government, which ministry will look after, and within the ministry which department will take care about that and which department will handle that function, उसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया जाता है allocation of business rules में. ठीक है. allocation of business rules शेड्यूल 1 पे कौन सा सब्जेक्ट किस मिनिस्ट्री को दिया हुआ है ना, सॉरी, सरकार के अंदर कितनी मिनिस्ट्री होंगे, कौन सा मिनिस्ट्री होंगे, दैट इज शेड्यूल 1 पे. देन शेड्यूल 2 पे आएगा उस मिनिस्ट्री के अंदर किस सब्जेक्ट किसके पास रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स रहेगा. तो इतना ध्यान रखिएगा, अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स कंटेन्स 2 schedules, शेड्यूल 1 and शेड्यूल 2. Schedule 1 will the list of ministries, departments to function under Government of India, and Schedule 2 talks about the subjects allotted to each of the ministry and the departments under that particular ministry. And allocation, that subject allocation when it comes, again it is bifurcated in 5 parts. मेन सब्जेक्ट, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट, सब्सिडियरी सब्जेक्ट, देन इंटरनेशनल मैटर्स के साथ जो है, देन रिलीफ वर्क वाले जो है. तो पार्ट 5. ठीक है. देन वी मूव फ्रॉम हियर, we come to the transaction of business rules. We may again go back to the structure of the government at a later stage. ठीक है. So here the transaction of business rules means it lays down the procedure. जो ये जो टॉपिक जो अलॉट किया था हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री को, उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किसके अथॉरिटी पे उसको जो इसका व्यवस्था क्या है, उसी हिसाब को बताने के लिए ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स होता है. ये भी ऐसे फर्स्ट शेड्यूल एक होता है. देन यू गॉट दी, इसमें स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में बताते हैं एंड देयर फंक्शंस. देन देयर विल बी annexure to first schedule, annexure 1, 2, 3 like that, it will be there. ठीक है. अपॉइंटमेंट्स रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमिटी, ये रहता है उसमें. देन annexure 2 रहता है, एम्पैनल वगैरह उसके बारे में रहता है. ठीक है. हाँ जी सर. हाँ, कोई सवाल?
any questions? Any doubt? मिस्टर अजय कुमार, आप कहाँ हैं? सर IRI न्यू दिल्ली। IRI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यस सर। ये कहाँ पूसा में है क्या? हाँ जी पूसा। अच्छा, आपका जो आपका इंस्टीट्यूट का मेन फंक्शंस क्या है? सर रिसर्च है और एजुकेशन है सर। नहीं, रिसर्च ऑन किस एरिया? मिलेट्स का है या नॉन मिलेट्स एरिया? नॉन मिलेट्स एरिया है सर। नॉन मिलेट्स का है। ओके, उसके अंदर राइस भी आ रहा है? जी सर। राइस एंड व्हीट, इफ आई राइट, है ना? राइस हम्म। व्हीट। ओके। राइस ईट हाँ। अच्छा, ये रागी जो है, रागी का खेती होती है, इट कम्स अंडर विच एरिया और विच डिविजन ऑफ ICAR? रागी। रागी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिकॉज जनरली इन कर्नाटक, बिकॉज आई बिलोंग टू कर्नाटक, एंड कर्नाटक में तो रागी बोलते हैं, तेलुगु में भी इधर ही रागी बोलते हैं। उसका दूसरा एक नाम है, मैंने सुना था अभी। कहाँ थे? आई वॉज इन रांची में कहीं थे, समथिंग लाइक दैट। इवन बिहार में भी आजकल हो रहा है उसका। इससे वो जो सरसों के जैसे बड़ा छोटा सा रहता है, पतला रहता है, हाँ जी। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, कोई क्यों चुप हो गए थे? कुछ जवाब दे रहे थे, दे दीजिए। तो दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ये बताता है कि जो सब्जेक्ट जो अलॉट किया था हर मिनिस्ट्री को, उसको किस पद्धति से वो काम को निपटाना है। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका दायित्व किसके पास रहेगा, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में। ओके, नाउ वी गो बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट पे। हाँ, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फंक्शनरीज। आप बताइए, सेक्रेटरी का रोल क्या है डिपार्टमेंट के अंदर या मिनिस्ट्री के अंदर? Sir, executive head, sir. ओके, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस वन। और क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड बोलने से इनके पास जिम्मेदारी क्या क्या रहता है? He is not only the executive head and has the responsibility of the proper functioning of the department under his control. इसके साथ साथ ही इज द चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, Okay, sir. तो जो आपको जो एक्सपेंडिचर वगैरह, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट भी इनका एक काम होता है। तो इसलिए उनको कभी वो सपोर्ट करने के लिए एक एडिशनल सेक्रेटरी हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के भी आ जाते हैं मिनिस्ट्री के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर। इफ एडिशनल सेक्रेटरी इज दैट, जनरली एडिशनल सेक्रेटरी विल बी द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर आल्सो, ही इज द एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर आल्सो। ओके, तो सेक्रेटरी इज द होल एंड सोल ऑफ द डिपार्टमेंट। is he also the disciplinary authority? Yes, एग्जीक्यूटिव sir. होने की वजह से is he also the disciplinary authority? Yes, sir. Yes, sir. यस। किसके लिए रहेगा? Is it for class 1 post or within class 1 or class 2 post? For class 1 post, sir. Okay. Generally, class 1 post के लिए appointing authority and disciplinary authority is President of India. Generally. ठीक है, Okay, sir. लेकिन कहीं Okay. कहीं जो डेलीगेटेड अथॉरिटीज के अंदर एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं कुछ पोस्टों के लिए, इवन दो इट में बी अंडर क्लास 1, सेक्रेटरी में बी दी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बट उन्होंने पेनाल्टी इंपोज करने के पहले नॉट ओनली मिनिस्टर का अप्रूवल जरूरी है, कभी कभी प्रेसिडेंट का भी एक कंकरेंस का ले लेते हैं, वो केस टू केस में रहता है। सो ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड वी कम टू द विंग्स, डिविजन्स, ब्रांचेस, सेक्शंस। एक सेक्रेटरी के अंदर देयर में बी मोर देन 2 विंग्स, and then the further wings will be bifurcated as divisions, and divisions gets bifurcated to branches, and branches will consist of many sections, processing sections under the department. Okay, तो जब देखते हैं तो जनरली
joint secretary will be the head of the wing, and he is supported generally by an officer called director or deputy secretary, who will be holding charges of the various divisions in a wing, which will be a part of the ministry or department. ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी जो, उसके बाद जो डेप्टी सेक्रेटरी रहते हैं, डेप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर विल बी देयर, हेड ऑफ द डिविजन्स। उसके बाद जो रहेंगे अंडर सेक्रेटरी रहेंगे ब्रांच। So the deputy secretary may be the controlling officer for more than 3 or 4 branches in a department. Generally 3 और आजकल डेट में 3 या 4 ब्रांचेस के लिए एक डेप्टी सेक्रेटरी विल बी द कंट्रोलिंग ऑफिसर. Sometimes it may even be a director also. And these level officers can also be declared as head of department. आपका जो functional requirement के basis पर an officer who is empaneled as director to director post, they may also be declared as JAG, JSG level, junior administrative selection grade पे जो रहते हैं उनको भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि ओनली एसएजी लेवल ऑफिसर्स विल बी डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट. अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है तो इवन जेएसजी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट. एंड हेड ऑफ ऑफिस जो होते हैं जनरली अंडर सेक्रेटरी लेवल पे ही रहते हैं, बट इन फील्ड एस्टेब्लिशमेंट्स जनरली एक जेएजी लेवल ऑफिसर को, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो डिप्टी सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रहते हैं, उनको हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है टू टेक केयर अबाउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट और फील्ड ऑफिस. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. अच्छा. So under secretary he may work in isolation for certain work, but majority of work he is supported by a section officer, or many more than 2 or 3 section officers may be functioning under the control of a under secretary. Okay, and section officers are responsible for what? For they are responsible, for example in your organization administrative officer है ना, आपके यूनिट्स में एडमिन ऑफिसर होते हैं या डबल वो एडमिन ऑफिसर होते हैं या असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं क्लास 2 के And ग्रुप बी below that, AO is also. डबल वो. ठीक है, तो दे आर responsible for the proper functioning of the section to deal with the subjects allotted to the particular section. इसका रेगुलर माने दैट इफेक्टिव फंक्शनिंग रहना है. केसेस डिस्पोजल में भी उनका जो दायित्व रहता है टू रिड्यूस द डिले इन डिस्पोजल ऑफ द असाइन्ड वर्क, है ना. एंड is the section officer functions alone or is he be supported by somebody? By the dealing hands. There will be dealing hands under one a section officer may be controlling some process level staff who are junior, as well as some seniors will also be there. Senior level जो assistants वगैरह रहते हैं. Junior level means जो entry level के होते हैं, lower division clerk and upper division clerk, something like that. ठीक है, so they take care about the timely disposal of the cases referred to the section on the subjects allotted to that one. आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर सेक्शन के लिए वर्क अलोकेशन का ऑर्डर है? Yes, sir. यस. एंड ईच वर्किंग स्टाफ के लिए भी वर्क अलोकेशन का ऑर्डर है? Yes, sir. आप लोगों ने कभी यह सवाल किया था कि वर्क अलोकेशन के जो ऑर्डर इश्यू करते हैं अंडर विच अथॉरिटी? हैज एनीवन आस्क्ड योर सीनियर ऑफिसर under which authority the work allocation orders are issued? No, sir. See, this is what happened to me when I joined an office on posting. मेरे पास उस वक्त 2 यूडीसी थे. उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वो वो फील्ड लेवल यूनिट था. तो as soon as मैं ज्वाइन करने के बाद आई पुट अप दैट वर्क अलोकेशन का ऑर्डर करने से ये दोनों यूडीसी आकर सवाल किए थे, आप किस अधिकार से ये ऑर्डर इश्यू कर रहे हैं? हमने इधर 8 साल से काम कर रहे हैं, हमें ऐसे कोई ऑर्डर के हिसाब से काम नहीं करते हैं, जो बोला गया है वो हम करते हैं. बोला इट हैज बी स्ट्रीमलाइंड. तो फिर काफी बहसबाजी हुई थी. उनका मैंने अनदर ऑफिसर वाज आल्सो देयर, बोलते हैं इसका जरूरत नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट है सर, इसका जरूरत है. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में चाहे फील्ड ऑफिस हो या सबसे छोटा यूनिट हो या डिपार्टमेंट हो, क्या काम कर रहे हैं वो लिखित रूप में रहना अनिवार्य है.
क्योंकि इट हैज गॉट ए रिलेशन विद द ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में पद्धति के बारे में क्लियरली बताया गया है, कौन सा काम कैसे करेंगे, किस रूप से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, किस तरीके से करेंगे और किस से करवाएंगे। ठीक है। तो इसके वजह से जनरली ऑफिस में वर्क अलोकेशन का ऑर्डर जब भी इशू होता है, हेड ऑफ ऑफिस के साइन पर होता है, ऑफिस ऑर्डर में होता है। इट इज इशूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। तो वो ऑफिस में काफी जो बहसबाजी हुआ, तो मैंने जब बोला ये टीओबीआर का ऐसा कोई बुक है ही नहीं बताया थे। दे वर नॉट इवन अवेयर, उधर की कुछ ऑफिसर्स को भी अवेयर नहीं है कि अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बोलकर होता है टीओबीआर। क्योंकि उधर क्या होता था, वो ऑफिस में फील्ड लेवल पे अपॉइंट होता था, फील्ड लेवल पे ही रिटायरमेंट हो जाता, प्रमोशन वगैरह लेके, तो उनको पता ही नहीं चलता था। तो फिर हमें अभी तो ऑनलाइन पे मिल रहा है, अराउंड 30 years बैक हार्ड कॉपी मिलना मुश्किल पड़ता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेशनरी डिपो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक कौन सा सेंट्रल सेक्रेटरी, कहीं से मैंने मंगा कर दिया था, उनको बुक दिखाया था। ठीक है। दो दी सम ऑफ द ऑफिसर्स बिलोंग टू ग्रुप ए अलाइड सर्विसेज, स्टिल दे वर नॉट इवन told about these kind of documents during their induction training or something like that। तो उसके बाद ये हुआ था, वो डिपार्टमेंट या फील्ड ऑफिस से एक डिमांड हुआ था, जब भी जो नया ज्वाइन करते हैं उनको ये दोनों किताबों के बारे में बताया जाता है। आप देखिए, आपके उधर भी कभी कभी ये करते हैं ना, मुझे इतनी काम क्यों देते हैं, बाकी तो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको तो कुछ काम नहीं देते हैं, बोलते हैं या नहीं? सुनने में तो आया होगा। तो अगर वो सेक्शन ऑफिसर अगर किसी को कुछ काम दे रहे हैं, उनके जो एक्सिस्टिंग वर्क के अलावा दे रहे हैं, उसके लिए भी अथॉरिटी है। दी सेक्शन ऑफिसर ड्रॉज द अथॉरिटी फ्रॉम द ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, मेनली टू एंश्योर दैट वो काम करवाना है, कराना पड़ता है टाइम के अंदर। ठीक है। तो सेक्शन ऑफिसर ये मत सोचिए सेक्शन ऑफिसर अपने खाली बैठा, उनका भी अपना दायित्व रहता है काम करने के लिए, क्योंकि ही इज हैज टू रिपोर्ट टू अंडर सेक्रेटरी। तो लाइन ऑफ रिपोर्टिंग एंड चैनल ऑफ सबमिशन के हिसाब से करते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस यस ओके। Yes, sir. तो आप मुझे बताइए, ये जो डिपार्टमेंट फंक्शन जब देखते हैं हमने, व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ प्यून? नाउ आजकल एमटीएस हो गए हैं, प्यून और एमटीएस इन एन ऑफिस, इन ए फील्ड ऑफिस। आप अगर जब आपके यूनिट में प्यून को एमटीएस को बोलते हैं मेरा टेबल थोड़ा साफ कर लो, मना कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। नो। दे के नॉट, क्योंकि उनके लिए भी एक अलोकेशन ना, वर्क अलोकेशन का एक ऑर्डर निकालना है। ये हर जनरली मैंने जो देखा था काफी ऑफिस में, प्यून के लिए क्या काम करना है उसका लिस्ट अवेलेबल होने के बावजूद भी, इसका जो डिटेल अवेलेबल है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में क्लियरली लिखा गया है दैट पहले प्यून हुआ करता था, अभी एमटीएस के लिए क्या क्या काम करना है बोलकर लिस्ट आउट है। वो लिस्ट को उतार कर उनको अलोकेशन देना है। वो इसीलिए आप लोगों ने आपका जो पहले एनुअल कॉन्फ्रेंशियल रिपोर्ट हुआ करता था, अभी तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हो गया है। उस पे आपने पार्ट 2 में अपने जो रिपोर्ट लिखते हैं ना, क्या क्या काम किया है बोलकर, हम्म। तो अगर आप आपके जो काम जो किया है, नहीं आपका कौन सा काम अलॉट किया है, इसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा है, आपके अलोकेशन ऑफ वर्क ऑर्डर है, अलोकेशन ऑफ वर्क। ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी पड़ता है कि वो सबके लिए देना है। इट इज नॉट दैट थ्रेटन करने के लिए नहीं, इट्स ए सिस्टम है, ताकि पता चलता है कि किसके पास कौन सा काम है। ठीक है। ओके सर। चलिए, एंड नाउ यू टेल मी, अगर कहीं जो अंडर सेक्रेटरी के बाद वो पर्टिकुलर एक सेक्शन में, एक यूनिट में सेक्शन ऑफिसर नहीं है, तो फर्स्ट लेवल सुपरवाइजरी फंक्शंस किसको दिया जाता है? द सीनियर मोस्ट असिस्टेंट। सीनियर मोस्ट असिस्टेंट को, उनको सेक्शन का इंचार्ज बनाया जा सकता है इन फील्ड ऑफिसर्स। बट दिस प्रैक्टिस इज नॉट देयर इन द सेक्रेटेरिएट और डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स में ये ऐसे जो स्थिति को ओवरकम करने के लिए जनरली एक सेक्शन ऑफिसर रहते हैं। पहले सुपरिटेंडेंट हुआ करता था या हेड क्लर्क हुआ करते थे। नाउ इट इज section officer will be there. He is the lowest, though lowest functionary, he is a very important functionary
so far as the administrative and functional matters of a department is concerned. Okay, am I clear? What is the work responsibility of upper divisional clerk or senior office assistant? क्योंकि कहीं कहीं जो डेसिग्नेशन चेंज करके अभी यूडीसी को सीनियर ऑफिस असिस्टेंट कर दिए हैं, एलडीसी को चेंज करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और देन व्हाट विल बी द डेसिग्नेशन फॉर दिस वन? सीनियर असिस्टेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, इन सेक्रेटेरिएट लेवल पे उनका जो डेसिग्नेशन चेंज करते हुए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इट गोस। फील्ड ऑफिस में जब आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शंस कैरिड आउट, उनको डेसिग्नेशन दिया जाता है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइक दैट। ठीक है, तो any questions on this? So far we have discussed on the machinery of government. We talked about the first of all the pillars of government, उसके बाद उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है उसके बारे में बात किए थे। Then we talked about the structure of the government, then functionaries, उसका certain role and responsibility के बारे में बात किए थे। Any questions before we wind up the session? Any questions? पूछ लीजिए, किसी को अगर कुछ पूछना है, मे बी इन इंग्लिश और हिंदी, जिसको भी जो डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, दूसरा एक बता रहा हूं मैंने, आप अभी वेबसाइट में जाइएगा, कहीं भी जाकर कोई भी आप वेबसाइट में अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब टाइप करते हैं, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी का पोर्टल खुलेगा, उस पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ AOBR विल बी अवेलेबल, विच कैन बी सीन। सो यूर ऑल इन द लकी पीरियड दैट आप लोगों को एट द क्लिक ऑफ ए बटन यू आर एबल टू एक्सेस डॉक्यूमेंट। देन ट्रांसैक्शन बिजनेस रूल्स, आपके जो इवन मिनिस्ट्री से भी जो डेयर के अंदर से कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, किस यूनिट, किस ICR का किस यूनिट किसके बारे में काम करेंगे, दैट ऑल्सो विल बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और लिस्टिंग आउट मेड इन दी अलोकेशन बिजनेस रूल्स एंड ट्रांसैक्शन बिजनेस रूल्स। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हर ऑफिस के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए। तो इसलिए मेरा ये जनरली सजेशन रहता है कि हर फंक्शनरी इन द ऑर्गेनाइजेशन should be aware of the necessity and importance of these two documents। ये दोनों के बारे में जानकारी रखना उचित रहेगा, क्योंकि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सेक्रेटेरिएट में जब फील्ड लेवल से ऑफिसर्स आकर फंक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि देखिए आपके जो साइंटिस्ट भी मिनिस्ट्री में जाते हैं नहीं पोस्टिंग में, आर दे नॉट गोइंग देयर? सम ऑफ द साइंटिस्ट आल्सो मे गो देयर एज जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री। या जाते हैं सर। तो दूसरे मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो, क्योंकि एक केस है, एक मैंने जो मेरे जानकारी में लाया गया था, एक साहब फील्ड ऑफिस से पोस्टिंग हुआ था, ही वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में पोस्टिंग हुआ था। ठीक है, तो उनका सेक्शन से एक फाइल आए थे, देन ही आल्सो रिकमेंडेड द एक्शन एंड प्रपोज्ड एक्शन को रिकमेंड करते हुए आगे बढ़ा। तो जॉइंट सेक्रेटरी ऑल्सो इंसिडेंटली न्यू जॉइंट सेक्रेटरी था, उन्होंने भी यस करके आगे बढ़ा, तो एडिशनल सेक्रेटरी सबको बुलाए थे। द एडिशनल सेक्रेटरी कॉल ऑल द पीपल इंक्लूडिंग द असिस्टेंट इन द सेक्शन, जो मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट के अंदर जो है असिस्टेंट को बुलाकर उनसे पहला पूछा था, आपने ये प्रपोजल पुटअप करने के पहले अलोकेशन बिजनेस रूल्स का नोटिफिकेशन को देखे थे या नहीं, ये तो सवाल किए थे उन्होंने। तो असिस्टेंट ने बोला साहब मैंने देखा नहीं, मैं छुट्टी पे था, आज ही मैंने ज्वाइन किया, मंडे को आते ही एक आ गए थे, पुटअप कर दिए। व्हाट हैज हैपेंड वाज ऑन फ्राइडे देयर वाज ए चेंज। फ्राइडे द पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज अलॉटेड टू अनदर विंग, अनदर डिविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, एंड द इंस्ट्रक्शन वाज ऑल द रिलेटेड पेपर्स वेयर टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर विंग। तो ये हो जाता है सेक्रेटरीट में फंक्शन करते हुए, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी रखना अनिवार्य होता है। हमें क्लियर? Any questions so far as machinery of government is concerned? I have given you an overview only. We have not gone into deep of the different part and different schedules. सर डाउट तो And नहीं। I'll be sharing this much slide to your organization. हाँ जी, यस सर। हाँ जी सर, any question?
Anybody? No question from any participants, sir. ठीक है. So then, can we close this session? Yeah. The session is closed, sir. Thank you very much, sir, for Thank sparing you. your valuable time and a very informative session on machinery. of Thank the- you very much, sir. Thank you. Okay, sir. Okay. So now the session is closed. Who will be sharing the PPT? Yeah, I'll be sharing the PPT too in your mail.